न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। अजय टम्टा ने संभाला है मंत्रालय का कार्यभार। इसी बीच आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। तो देखिए, आज आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव जीत के बाद ये देखिए चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश की कमान संभालेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सहयोगी दल है एनडीए का टीडीपी, और इस संदर्भ में भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने इस बार जो इतिहास रचा है, टीडीपी की ओर से इस बार मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जरूर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश राष्ट्र मुख्यमंत्री నియమితులైన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేత मुख्यमंत्री पदवी प्रमाण स्वीकारम मरियु रहस्य परिरक्षण प्रमाण स्वीकारम చేయించవలసింది। నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। गौरवनीय गवर्नर गारी अनुमति तो आंध्र प्रदेश राष्ट्र मंत्रिवर्गलुगा
ఎంపిక చేయబడిన వారి పేర్లున పదవి మరియు రహస్య పరిరక్షణ స్వీకారం కోసం చదువుతున్నాను. గౌరవనీయ గవర్నర్ గారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులుగా ఎంపికైన వారిచే పదవి మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మంత్రివర్యుల పేరు ఒక్కొక్కటి చదవటం జరుగుతుంది. గౌరవనీయులు కొనిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు, నేను కొనిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతని కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కొనిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. हालिया है, उन्हें सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। और इस बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ राज्य मंत्री के तौर पर अजय टम्टा ने भी कार्यभार अपना संभाल लिया है। तो देखिए जो अजय टम्टा है उन्होंने अपना पदभार संभाला, लगातार दूसरी बार है ये जब वो राज्य मंत्री बने हैं। मोदी कैबिनेट में टम्टा को जिम्मेदारी दी गई। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ संभाला पदभार। सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं अजय टम्टा, जिन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है, पदभार ग्रहण किया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर, सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया अजय टम्टा को। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में अजय टम्टा अपने कार्यालय पहुंचे कार्यभार संभालने के लिए। अजय टम्टा को उत्तराखंड से परिवहन एवं सड़क राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, राज्य मंत्री के तौर पर अजय टम्टा ने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी अब संभाल ली है। अपने कार्यालय वो पहुंचे हैं ताकि जिम्मेदारी संभाल पाए। फिलहाल
उनको मंत्री बनाए जाने के बाद से राज्य में किस तरह की खुशी, कितना उत्साह आप लोगों के बीच देख पा रहे हैं? बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से अजय टम्टा को परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है तो पूरे प्रदेश में अगर बात करें, पूरे प्रदेश में खुशी, चूंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जाति समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने व्यवस्थाएं करी हैं, क्योंकि ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष थे ठाकुर की अगर बात करें तो वो मुख्यमंत्री थे, और इसी वजह से जो SC/ST को साधने के लिए बीजेपी ने अजय टम्टा को मंत्री बनाया, क्योंकि अजय टम्टा 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी मंत्री थे, केएमपी कपड़ा राज्य मंत्री थे, और इस बार भी अजय टम्टा को परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया, सड़क एवं परिवहन मंत्री, क्योंकि नितिन गडकरी का उत्तराखंड से लगाव भी है, क्योंकि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड भी काम चल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि पहाड़ के जो जिले हैं वहां पे रोड किस प्रकार से जा सके, उत्तराखंड का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सके, इसको लेकर के खासी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। तो इसी वजह से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है, बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो लोग हैं संगठन से जुड़े लोग, सभी लोग बेहद खुश है कि उत्तराखंड से मंत्री गया है और एक मंत्री पद दिया गया है जिसमें अजय टम्टा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सभी लोग बेहद खुश हैं। इसके साथ ही सभी लोगों को यही कहना है कि अब उत्तराखंड का विकास चौमुखी विकास होगा। उत्तराखंड में चारों तरफ से, चूंकि चाहे वो सड़क परिवहन की अगर बात करें, चूंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती हैं आंचल तो पहाड़ों में सड़कों को लेकर के हैं कि पहाड़ की सड़कें अगर सही है तो हम पहाड़ आराम से जा सकते हैं। अनुज, देखिए आपने उत्तराखंड में देखा होगा, रोड नहीं तो वोट नहीं, और इस दौरान लोगों ने वोट का बहिष्कार भी किया था। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए अब अजय टम्टा को जब सड़क एवं परिवहन मंत्री बनाया गया है तो लोगों की परेशानियों का हल किया जाएगा? बिल्कुल आंचल, इस तरीके की चीजें बीजेपी के मीडिया प्रभारी हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, इस बात को लेकर के कह रहे हैं, क्योंकि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, हर जगह पे विरोध दिखाया गया, क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं, हर जगह का बैनर लगा करके विरोध प्रदर्शन किया गया। तो इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, साथ ही साथ अब चूंकि अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री भी बना दिया गया है, तो ये सभी लोग मिल करके उन समस्याओं को दूर करेंगे कि जो स्थिति ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सके, उसको किस प्रकार से खत्म किया जा सके, जो रोड है पहाड़ों जो रोड है उनको किस प्रकार से बनाया जा सके। साथ साथ ऑल वेदर रोड का जो काम चल रहा है, जो मानस खंड परियोजना है, क्योंकि वो कुमाऊं से जोड़ रही है मानस खंड परियोजना, उसमें कितनी जल्दी बन जा सके वो मानस खंड परियोजना, इसको लेकर के काफी बातचीत भी हो रही है और आगे काम भी होते हैं। ठीक है अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। देहरादून में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। IMD ने जारी किया है हीट वेव को लेकर अलर्ट। कई जिलों में 7 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तराखंड सुनकर आपको लगता होगा कि वहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ मौसम बहुत सुहाना होता है, वहाँ बर्फबारी के कारण लोगों को ठंड लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड में भी गर्मी के दौरान काफी प्रचंड गर्मी लोगों को झेलनी पड़ती है। समर सीजन वहां पर लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा इसलिए भी रहता है क्योंकि बर्फ पिघलकर नीचे की ओर आती है और इस दौरान लोगों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि अभी फिलहाल 1 हफ्ते तक उत्तराखंड वासियों के लिए कोई राहत नहीं है। कुछ इलाकों में भीषण हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भीषण और चिलचिलाती गर्मी से राहत की कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। राजधानी देहरादून में अगले 1 हफ्ते तक IMD ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी का रुख कर लेते हैं। अनुज, IMD की ओर से साफ कहा गया कि 1 हफ्ते तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी और ना ही लू से लोगों को राहत मिलने वाली है। फिलहाल मौसम को लेकर विशेष जानकारी दीजिए। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से IMD ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, साथ साथ मौसम विभाग भी इस बात को बोल रहा है कि राजधानी देहरादून समेत तमाम जो मैदानी जिले हैं वहां पे हीट वेव पूरी तरीके से हावी रहेगी। 7 दिन करीब ये हीट वेव हावी रहेगी। 7 दिन के बाद कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये 7 दिन राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और साथ साथ जो पहाड़ी जनपद है
वहाँ हल्की फुल्की रात में तो आपको हल्की फुल्का मौसम सुहावना जरूर देखने को मिलता है, लेकिन दोपहर में पूरी तरीके से धूप है, हीट वेव है। लोगों को बचने की सलाह दी गई है कि जैसे जितना कम से कम हो आप घर से कम निकले, बेहद जरूरी काम हो तब आप बाहर निकले। इसके अलावा जो पेय पदार्थ है उनको आप हमेशा लेते रहे, लिक्विड के तौर पे लेते रहे, चाहे वो ठंडा पानी हो, शीतल पेय पदार्थ हो, या अन्य जो भी आपको ठंडा करने के लिए जो चीज़ ले सकते हैं आप, मिल्क के प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हैं। तो ये जो तमाम प्रोडक्ट है इसकी एडवाइजरी भी जारी की गई कि कम से कम आप लोग घरों से बाहर निकले, क्योंकि पूरे प्रदेश में हीट वेव का असर करीब 7 दिन रहने वाला है। और 7 दिन के अंतराल में, क्योंकि हरिद्वार में टूरिस्ट भी आ रहे हैं, राजधानी देहरादून समेत मसूरी में भी टूरिस्ट आ रहे हैं, गाँव की अगर बात करें नैनीताल के वहाँ भी टूरिस्ट आ रहे हैं। इन जगहों पे भी लोगों को बचने की सलाह दी गई है कि जगहों पे अगर दोपहर में है तो कृपया करके आप लोग घरों से या अपने दोस्तों से या अपने जो स्थान है जहाँ पे आप रुके हुए हैं वहां से बाहर न निकले, कि हीट वेव काफी खतरनाक है। इस वजह से बोला जा रहा है कि आप लोग कृपया करके हीट वेव से बचे। तो ये मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये 7 दिन करीब हीट वेव है और 7 दिन के बाद थोड़ा इसके मौसम में सुहावनापन आ सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुज। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में राजनीतिक का हलचल तेज हो गई है। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा की गई। कांग्रेस की तरफ से काजी निजामुद्दीन मैदान में है और बीजेपी की ओर से करतार सिंह भडाना पर दांव खेला जा सकता है। तो मंगलौर विधानसभा में एक बार फिर से चुनाव होना है, यानी कि उपचुनाव होना है। यहाँ पर घोषणा के साथ ही राजनीतिक का सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक है काजी निजामुद्दीन, जिन्हें मैदान में उतारा जा चुका है, और बीजेपी की ओर से करतार सिंह भडाना पर दांव खेला जा सकता है। बता दें कि मंगलौर विधायक का सरवत करीम का पिछले साल 30 अक्टूबर को निधन हो गया था। अब 10 जुलाई को मंगलौर विधानसभा में मतदान और 13 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। देखिए, फिलहाल उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 तारीख को मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले 10 जुलाई को मतदान होगा। चले रुक करते हैं अगली खबर का। 15 जून को कैची मेले का आयोजन होने जा रहा है। कैची धाम भवाली में मेले का आयोजन होगा। मेले की तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। कैची मेले को लेकर हुई बैठक का कमिश्नर दीपक रावत ने की बैठक की अध्यक्षता। मेले को लेकर तैनात किए गए हैं मजिस्ट्रेट। डीएम ने जारी की है गाइडलाइंस। हर साल जून के महीने में लगता है मेला। रिकॉर्ड तोड़ भक्तों के पहुंचने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। तो अगर आप भी कैची धाम जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए जानकारी है। 15 जून को नैनीताल में कैची धाम में मेले का आयोजन होगा और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। प्रशासन मेले की तैयारियों में जुट चुका है। और हर साल इसी तरह मेले का आयोजन किया जाता है। तो फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 15 जून को कैची धाम में मेले का आयोजन किया जाएगा और इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। आपको बताते चलें कि हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु कैची धाम पहुंचते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।